तो आज मेरी सुबह हुई 6:15 AM को एंड फाइनली माई प्री बोर्ड्स आर डन एंड आई कैन नाउ फाइनली कॉन्सेंट्रेट ऑन माई प्रिपरेशंस फॉर बोर्ड एग्ज़ाम। एंड गाइज इसके वजह से आई वॉज नॉट एबल टू फिल्म वीडियो फॉर सो मैनी डेज़, क्योंकि मेरा पिछला जो ट्राईपॉड है वो टूट गया था एंड ये ट्राईपॉड मैंने मंगाया था एंड आने में गाइज इतनी देर हो गई इसको, लिटरली टुक 3 weeks टू कम। बट anyways now we are back, so I started with history क्योंकि सुबह में our mind is like fresh and we are able to concentrate on the concept, so I choose the hardest task to be done first. I was doing revision of history, तो यहाँ पे I was doing lesson tourism and history and I'm trying कि जितनी बार मैं एक एक lesson पढ़ सकूँ उतनी बार पढ़ूँ, क्योंकि it will get fixed into my mind by reading it again and again. So here I was just reading the lesson and after that I've got this book and it's really helpful, like जो भी questions बार बार बोर्ड्स में आ रहे हैं वो क्वेश्चंस इस बुक में दिए हुए थे. हियर आई एम जस्ट रिवाइजिंग माई नोट्स. काफ़ी ज़्यादा लेंदी आंसर्स होते हैं, तो एक बार में रिवाइज करने से वो आंसर्स आपको याद नहीं होते, तो इट ऑल्सो नीड्स रिविजन. तो यहाँ पे मैं रिविजन कर रही हूँ बस उसी की. काफ़ी बार गाइज हम एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन वो देखते हैं तभी उसका आंसर हम भूल जाते हैं. लाइक हमको कॉन्सेप्ट याद आता है बट हमको एग्जैक्ट जो आंसर है वो याद नहीं आता. इसके लिए गाइज आई वुड लाइक टू सजेस्ट ओनली वन सोल्यूशन, दैट इज़ रिवाइज एज मच एज यू कैन एंड जस्ट ट्राई टू लर्न द कंसेप्ट बाय हार्ट. गाइज यहाँ पे अराउंड 7:30 AM हो रहे थे एंड फाइनली धूप आ गई थी. Would you believe if I say that I have life savior book for CBSE board? No, right? But I will make you all believe. These are the Oswald books. These 2 books which I am showing are last minute preparation and 20 sample papers combined of all 4 subjects. And these are individual sample papers book for each subject. Social science, science, math and English. जो भी important questions, repetitive questions आपको बार बार बोर्ड एग्जाम पूछते हैं, वो सारे questions, सारे questions आपको इन बुक में मिल जाएंगे. And we are always curious about toppers आंसर शीट, राइट? वी आर लाइक वो ऐसा क्या लिखते हैं कि उनको इतने अच्छे मार्क्स गिर सकते हैं और हमें नहीं. तो गाइज हमको भी मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि नाउ वी आर गोइंग टू गेट टॉपर्स आंसर. हाउ नीटली दे राइट, दे प्रेजेंट देयर आंसर्स, व्हाट टेक्निक दे यूज वाइल राइटिंग द आंसर्स, हाउ लेंदी वन आंसर शुड बी. एंड नॉट जस्ट फॉर मैथ्स, यू आर गोइंग टू गेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स फॉर सोशल साइंस, English language and literature too. Just guys imagine if you are getting toppers answer sheet, important questions, then who can stop you from getting 95+% in board exam? Guys, trust me, without wasting any time, just go and order these books. I am sure these books are going to be very helpful and you guys will thank me later for suggesting these books to you all. हमको notes बनाने में time नहीं बचा, right? Oswald books also have mind maps made for each and every subject individually. In this mind maps you will get important theorems, formulas and guys last minute preparation में आप अगर ये mind map देख के भी जाओगे तो it will be so helpful. So this was about maths and let's talk about science now. In science you will also get topper's answer sheet. Just see how neat and clean the topper has presented the answer sheet. And also साइंस में माइंड मैप्स ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आपको इम्पॉर्टेंट जो इक्वेशंस होते हैं, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस होते हैं, वो माइंड मैप ने ऑलरेडी सब कुछ प्रोवाइडेड होगा. सो यू विल नॉट नीड टू प्रिपेयर सेपरेट नोट्स फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट. दीज बुक्स आर अवेलेबल इन सोशल साइंस एंड इंग्लिश सब्जेक्ट टू. Now let's take a moment and talk about last minute preparation book for CBSE 10th grader. In this you will get revising notes, mind maps and concept videos, rapid preparation also. तो you can see इसमें कितने detailed में आपको सब कुछ बताया है. This book is going to be very helpful for 10th graders and जो अभी 10th में जाने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा helpful होने वाली है. While preparing for board exam in last 15 to 20 days, these question papers are going to be very helpful. Guys, इस book में एक benefit ये है कि आपको 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स मिलने वाले हैं. सो मतलब ये हो गया कि लॉटरी लग गया. डू नॉट फॉरगेट टू बाय दीज बुक्स. चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर मोर डिटेल्स. ओके, लेट्स गेट बैक टू द ट्रैक. सो यहाँ पे मैं आपको मौसम दिखा रही थी. यहाँ पे आई गेस अराउंड 7:30 हो गए थे, जो मैं पहले बोल चुकी हूँ. एंड गाइज इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आ रही थी मेरी खिड़की में से. इट वॉज जस्ट मेस्मराइजिंग. एंड हियर आई एम अगेन स्टडिंग साइंस 1. इसमें जो चैप्टर मैं पढ़ रही हूँ वो कार्बन कंपाउंड है, विच इज़ लाइक वन ऑफ द हार्डेस्ट चैप्टर. मतलब आई डोंट नो वाई, मुझे आज तक साइंस 1 में अभी तक जितने भी चैप्टर्स है, टचवुड कोई भी चैप्टर इतना मतलब डिफ़िकल्ट नहीं लगा.
ये चैप्टर के मतलब ये चैप्टर जब क्लास में पढ़ाया जा रहा था तब मैं एब्सेंट थी, सो मे बी दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम फाइंडिंग दिस चैप्टर डिफिकल्ट, बट नो वरीज, आई एम ट्राइंग टू कोप अप विद दिस चैप्टर एज मच एज आई कैन एंड आई एम लाइक गेटिंग सक्सेसफुल इन दैट। तो गाइज जब तक आप उसको करोगे नहीं तब तक आपको वो चीज़ हार्ड ही लगेगी, बट एक बार जब आप उसको अच्छे से शांत शांत दिमाग रख के आप जब उसको समझोगे ना तो वो आपको समझ में आ जाएगी। लाइक यू आर नॉट दैट डम राइट कि आपको मतलब बेसिक चीज़। एंड गाइज 10th का सिलेबस आई एम नॉट ट्राइंग टू टेल दैट इट इज़ ईजी, बट इट इज़ नॉट दैट हार्ड। लाइक आपके ब्रेन के लेवल के हिसाब से ही ये सब डिज़ाइन किया गया है, सो यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट, डोंट वरी। एंड अभी भी काफ़ी दिन है एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, डोंट लूज द होप। एंड गाइज आई डोंट नो व्हाई आई एम सो ऑब्सेस्ड विद दिस काइंड ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट, बिकॉज विंडो है, सनलाइट एकदम अच्छे से मेरे पर आती है, मैं पढ़ाई करती हूँ, एकदम बॉलीवुड वाइब्स आते हैं। एंड जस्ट इग्नोर माई हैंड राइटिंग, इट इज़ नॉट सो बॉलीवुड वाइब्स, बट गाइज आई एम ट्राइंग टू बी रॉ एंड रियल। जैसा मतलब अच्छा है मेरा हैंड राइटिंग, बट यहाँ पे नहीं है। अभी मैंने आधे घंटे का ब्रेक ले लिया था जो कि एक्सटेंड हो गया 1 घंटे का, बट डोंट वरी, आई एम बैक। एंड अभी फॉर अ चेंज आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज द सब्जेक्ट विच आई वॉज स्टडिंग अर्लियर। मैं साइंस वन की पढ़ाई कर रही थी, अभी मैं ज्योग्राफी की पढ़ाई करूँगी। विद इन अ मिनट आई स्टार्टेड विद ज्योग्राफी की पढ़ाई एंड एज़ कम्पेयर टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी मुझे काफ़ी ज़्यादा ईजी लग रहा है। इनिशियली आई यूज़ टू लव हिस्ट्री, लाइक आई स्टिल डू, बट इस हमारा हिस्ट्री का सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है कि आई हैव स्टार्टेड, नॉट गोना लाई, हीटिंग इट। एक्चुअली नो, आई एम नॉट हीटिंग इट। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है गाइज, तो फोकस ऑन हिस्ट्री, जोग्राफी, साइंस, मैथ्स। एंड जितना आप इन पे फोकस करते हो, आप लैंग्वेज सब्जेक्ट को निगलेक्ट ना करो। लाइक आई हैव मेड अ प्रोविजन कि मैं हर एक सब्जेक्ट रोज़ पढूँ, लाइक मतलब सोशल साइंस का एक, जोग्राफी या फिर हिस्ट्री, साइंस का एक, साइंस वन या फिर साइंस टू, मैथ्स का मैथ्स वन या फिर मैथ्स टू, एंड लैंग्वेज हिंदी, संस्कृत, मराठी एंड इंग्लिश, इन चारों में का एक सब्जेक्ट रोज़ के रोज़ मैं सब कुछ पढूँ, सो दैट आई मीन्स सबको साथ में लेके चलूँगी, तो इट विल बी मोर ईजी फॉर मी एंड आई रिकमेंड इट टू यू ऑल्सो। यहाँ पे बीच में जब आपने क्लिप देखी कि मैं बुक खोल रही हूँ, तब मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था क्योंकि आई एम फॉलोइंग पोमोडोरो टेक्निक, अबाउट विच आई विल टॉक लेटर। तो यहाँ पे आई एम स्टडिंग ज्योग्राफी अगेन गाइज। यहाँ पे आई एम डूइंग राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ ज्योग्राफी नोट्स, जो मुझे हार्ड लगते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा लेंदी है वो, क्योंकि गाइज लर्न करते वक्त हमको हमें इतना टाइम नहीं होता कि एक एक क्वेश्चन लेके लिखे, बट गाइज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें लगता है कि यार वी हैव लर्न इट वेरी परफेक्टली। यू नीड टू राइट इट, एंड राइटिंग प्रैक्टिस, लर्निंग प्रैक्टिस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो गाइज लिख कर प्रैक्टिस करो। आई नो इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट लग रहा है वो एटलीस्ट एक बार लिख लो, ताकि यू विल गेट राइटिंग प्रैक्टिस एज वेल एंड इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड गाइज बोर्ड का स्ट्रेस ऑब्वियसली जनरेट हो रहा है हमारे अंदर, बट गाइज डो नॉट टेक स्ट्रेस, आप बस मेहनत करो। एंड गाइज जस्ट रिमेंबर दिस वन थिंग कि बोर्ड एग्जाम आप बस एक बार ही देने वाले हो लाइफ में, या तो जाने दो या फिर जान लगा के करो। गाइज prove yourself, your abilities. So I've been studying for past 50 minutes. I am following this Pomodoro kind of technique. It is not exactly like 25 minutes and a 5-minute break, but I am doing means I am increasing the time of studies and also the break. Like Pomodoro में basically what we do, 25 minutes we need to study and we take 5 minutes of break. So guys मुझे ऐसा लगता है कि 25 minutes is very less time, क्योंकि आपका जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगता है तब यू स्टॉप स्टडिंग। लाइक एट लीस्ट 50 minutes स्टडी टाइम शुड बी देयर, क्योंकि 25 मिनट्स भाई क्या ही है। लाइक I know for some people this works, but for me it was not working, so I increased the study time and I also increased the break time. Like Pomodoro में आप 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, तो इन दिस टेक्निक आई टेक 10 minutes break. So now I've been studying for 50 minutes. I set the alarm on Alexa. Now 50 minutes हो गए हैं पढ़ाई के. Now I'll just take 10 minutes break and I will study again for 50 minutes and I'll take break again for 10 minutes. So now अभी मैंने इतना किया है, इतना हुआ है. I'll see you guys. Bye.